अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। मेरा नाम है ज़ेब नबील। हमेशा की तरह वीकेंड पे आई एम ऑनलाइन और हमेशा की तरह जो मेरे गेस्ट हैं वो दे हैव डन समथिंग रियली स्पेशल। और इस दफ़ा जो मेरे गेस्ट हैं आई एम रियली ऑनर्ड कि वो मेरे गेस्ट हैं, क्योंकि शी हैज़ डन समथिंग एक्सेप्शनल, नॉट नॉर्मल। शी इज़ जस्ट अ 13 years old kid but have done so much in the world that के शायद मैं आज 35 की एज में भी उनसे बहुत पीछे हूँ और बहुत सारे लोग शायद कभी भी उनके लेवल तक ना पहुंच सकें। शायद इसी तरह के लोगों के बारे में अल्लामा इकबाल ने एक दफ़ा कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तो वैरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो without wasting any time, I will just go to Raheen Fatma, who is the youngest female comedian of Pakistan, who started at the age of 12. Last week उनकी birthday थी, so now she's 13, so she just changed the league in 1 week's time. इसके अलावा she is a winner of the 25 under 25 women who contributed towards arts and society. She is into theater, she is into so many things, and she is one of the army brats like me. Her father is an Air Force officer, just like me, so we have a lot of common. We just came to know while we were talking to each other. अस्सलाम वालेकुम रहीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं ज़हीब? I hope you can hear me well. Yeah, I can hear you very well. Thanks a lot for coming here and giving us time, first of all. It is an honor being here with another military brat, I would say, and another part of this amazing host community that we have on Facebook in Pakistan. It's just so amazing. That's great. Thanks, Raheen. So Raheen, आप थोड़ा अपने बारे में कोई introduction देंगे सबको, because I have given you, but I haven't done the justice. So you can do the justice with yourself. Okay, so my name is Raheen Fatma. I am 13 years old, and I am a stand-up comedian, writer, entrepreneur, a teacher, an international speaker, and I've recently also been awarded the 25 under 25 award. So this is my more kind of like summarized introduction, I would say. That's great. तो रहीन, कैसे आपके दिमाग में एकदम आया कि you can be a stand-up comedian? कहाँ से ये सोचा? And how it come pop Very up? interesting story actually, because देखिए अब at the age of 11 stand-up comedy का पता होना भी मेरे हाथ से बहुत बड़ी बात होती है. And I've always wanted to do something different, something like out of this world, like something very, very different. And पहले तो था हाँ ठीक है, हो जाएगा. Everybody's like हो जाएगा. And but when my brother was diagnosed with blood cancer, that's about 3 years ago, I was like no, because अगर एक 2.5 साल का बच्चा जो है, he could be so serious, and if he could actually maybe just pass away, then 10 साल का क्या होता है, right? And I was like, you know what? It's never too early or it's never too late. Age is just a freaking number. So let's just, forget that for a second and kind of like, deep dive into yourselves. अब मैं हमेशा से performing arts में रही हूँ, as in के ड्रामा क्वीन, ड्रामेबाज कह सकते हो, तो मैं शुरू से ही थी है, बस कभी कुछ नहीं किया, तो गरूर नहीं किया उससे कभी. अच्छा, तो उसमें ये था कि I wanted to perform something, और मुझे नई realization थी कि it's never too early to do anything. तो मैंने कहा जी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं. अब्बा ने जो है मुझे बताया था कि स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो तुम. रात बैठ के सारे कॉमेडियंस को सुना, फिर मैं कहा यार दिस इज अ गुड थिंग. अब उसी तरह स्टार्ट किया. स्कूल में तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि मे बी इट वाजंट अ स्कूल थिंग, लेकिन फिर मैं ओपन माइक्स पे गई और ओपन माइक्स बहुत किए, और इसी तरह आई लैंडेड अप इन अ कॉमेडी ग्रुप, कॉमेडी स्क्वायर पाकिस्तान, और अब उनके साथ शो हो रहे थे जब तक कोरोना नहीं था, तो बहुत मजा आता है. That's great, Raheen, and so it's a very wonderful, encouraging story. People usually get depressed, but you get most out of the situation, which is amazing. That's a great thing. और सबसे बड़ी बात ये है कि usually क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में सुना जाता है कि women or girls are being oppressed. The best part is that your dad is the one who gave you a suggestion.
So how you felt about it? Okay, your father was your first encouragement. Yes, and you know, I think it is. I understand because parts that there are people along me that are not as they're not allowed to do certain things, which I think are also important. You know, sometimes they're not protected at all, or sometimes they're overprotected, and you know, there's nothing worse than being overprotected. You don't get to do this and that, or yeah, or wo hai. And then when you get, you know, kind of like exposed to the real world, you can go crazy because you know it's just too much to handle for you, and that, you know, kind of that guard is just, you know, dropped. So it's just way too much. But Baba has always been very supportive. But I think Baba is supportive नहीं होगी जितनी मेरी अम्मा supportive है, because now see, I am 110% sure. I am not in the same house as her because मैं अपने cousins के घर आई हूँ. तो I am sure कि अभी वो बैठी होंगी अपने मोबाइल लेके, and she'd be listening to this interview. और मेरे भाई की आदत है कि he would, you know, he would start sending those likes and hearts in the Facebook live, जो आपके पास options होते हैं. मामा, बाबा और इब्राहिम का काम ही सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ ये करते हैं. लेकिन अगर इब्राहिम का नाम, जो मेरा भाई है, उसका नाम ना अगर ले, तो वो फिर एंग्री फेस भी भेजता है. वो ही इज द काइंड ऑफ पर्सन, नहीं मैं एक भेजूंगा, उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने मेरे मेंशन नहीं किया मैं कितना अच्छा हूँ. तो दे आर ऑलवेज सपोर्टिव. माय कजिन्स, माय फ्रेंड्स, आई मीन they are not jealous, but they are the supportive ones. You know, they're kind of like, यार अच्छा काम कर रही हो. और मजाक में भी it's really fun. I mean, my cousin was like, you know, तुम इधर बैठो तो मेरा stand भी ले लो, तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो. She's amazing. Hafsa, love you. That's great, Raheen. Raheen, हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद उस्मान, वो पूछ रहे हैं कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, और दूसरा पूछ रहे हैं आप स्टैंड अप कॉमेडियन है तो आप बैठ के कॉमेडी कर सकती हैं कि नहीं, क्योंकि फैसलाबाद से हैं तो इसलिए रह भी नहीं सकते खुद भी. अच्छा, मैं अगर एक पर्सनली बात बताऊं, और ये मुझे पता है, आई बी सो लाइक कि यार ये तो लिटरल मीनिंग समझ गया. मुझे नहीं अच्छा लगता बैठ के कॉमेडी करना. लाइव पे जो फेसबुक लाइव्स है उस पर भी मैं इसलिए करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सर लाइव आके सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं आती, क्योंकि यार मुझे होता है कि यार मैं आराम से बैठ के करूँ, मुझसे नहीं वो होता. वो जो खड़े हो के वो माइक पकड़ के, वो जो चल के होता है ना मजा, वो nothing can match that. Now my name also has a very big story because I think my dad discovered my name, मतलब उनको, because I was the first kid in the family and Baba was always a researcher, so he was like बस अब बच्ची है ना मेरी तो उसका नाम अब हमने सोचना है. Baba took 3 months, and in 3 months it took him 3 months to figure out my name. So my name means obedient, यानी ताबेदार. मुझे लगता है my dad is a very smart person because you know he kind of like played a game by naming me obedient, ताकि end of the day I have to be obedient somehow. लेकिन मुझे लगता है अगर मैं obedient ना होती तो मैं ऐसी ना होती. वैसे अगर you can ask my parents कि मैं obedient हूँ या नहीं. That's true. I will definitely do in my next visit to Islamabad. तो जहाँ तक आपने ओवर प्रोटेक्टिव की बात की थी, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, अनफॉर्चुनेटली हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. जब मैंने भी फर्स्ट टाइम कैंटोनमेंट के गेट्स छोड़े थे और पीएफ चकलाला का जो गार्ड रूम छोड़ के बाहर गया था, तब मुझे पता चला था बाहर लाइफ कैसी है. यस, वी हैव बीन वेरी मच ओवर प्रोटेक्टेड इन द गार्ड रूम्स. ये एक रियलिटी हम सब आर्मी ब्रैट्स की. लेकिन यहाँ पे ये रियलिटी है, वहाँ पे मैंने एक और चीज भी देखी है कि वी आर वेरी मच यू नो मल्टी कल्चरल काइंड ऑफ पीपल, कि हम हर कल्चर, हर किस्म के लोगों में फौरन मिंगल हो जाते हैं. उसकी रीजन ये है कि हमें कभी भी एक जगह तो रहने का मौका नहीं मिलता. कभी पेशावर, कभी चराट, कभी कोयटा, कभी नवाबशाह, कभी कराची. तो आप इस एक्सपीरियंस को क्या देखती हो कि जो आपका बीइंग एन आर्मी ब्रैट, जिसमें आप ट्रेवल करती रही होगी, डेफिनेटली डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग्स होती रही होंगी, तो does that help you to understand different cultures and crack up jokes और ये सब या नहीं? It does, because अब मैं जो थी, I was born in Peshawar and then I lived in Mardan for over 7 years. I lived in Karachi for about 3 years and फिर इस्लामाबाद में रही. फिर इस्लामाबाद से मैं recently, I think it has been like a month कि मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ. और I feel like कि it has, because जब आप इतने कल्चर्स से जब आप एक्सपोज होते हैं
तो ये होता है कि इट्स नॉट कि आप भूल जाते हैं अपना कल्चर, बट अपना आपका जो कोर कल्चर होता है आप उसको इतना स्ट्रांग रखते हैं दैट यू नो इट्स काइंड ऑफ दिस थिंग कि आपका कल्चर कहीं भूलता नहीं है आपको. यू स्टे एंड यू ऑल्सो अडेप्ट अ फ्यू थिंग्स. अब कुछ चीजें मैंने पेशावर से इकट्ठी की, कुछ मैदान से. अब वो सारी जब मैं देखती हूँ मैं लाइक यार, अब हमारा घर भी, हमारे जो एयरफोर्स आर्मी के घर होते हैं वो सारे बहुत कुछ ज्यादा ही मल्टी कल्चरल होते हैं, और जो लोग जरा बाहर के भी एक दो ट्रिप लगा आते हैं वो तो उनके तो घर देखने वाले होते हैं. तो बहुत मजा आता है. और आई थिंक ये इसी वजह से हम घुल मिल जाते हैं, क्योंकि अब मैं किसी पठान से मिलती हूँ तो ऑफ कोर्स हमारा फिर होता है यार पेशावर है, तुमने जलील कबाब से खाए कबाब, ये किया तुमने, वो किया. तो बस इसी तरह हमारी ऐसे एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. That's true. ये हमेशा से मुझे भी एडवांटेज रहा है वर्ल्ड में कि जहाँ भी गया हूँ जलील कबाब से लेकर मतलब सब कुछ पता है, तो यू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली. That's true. तो वैसे रहीम कभी कभी मिस करती हूँ कि बहुत ज्यादा कर लिया है तो अपना जो बचपना था उसको मिस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 12-13 साल की लड़कियां जिसने शाम को हम लोग कैंटोनमेंट से जाके खेलते हैं, अभी भी आप करती हो वो सब कुछ, या यू आर ऑल इनटू योर आर्ट्स एंड सोशल स्टफ? मजे की बात बताऊं आपको, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैं क्या करती हूँ इसके, यस मैं भी बाहर जाती हूँ और कभी कभार जब मेरा नहीं दिल जाता, सुस्त भी मैं बहुत हूँ. आजकल तो मैं बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गई हूँ क्योंकि मेरा सारा काम भी बैठ के होता है. स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा मेरे स्टैंडिंग का कोई काम नहीं होता, पूरा दिन मैं बैठी रहती हूँ. लेकिन खैर इस तरह का होता है कि हाँ मैं बाहर करती हूँ. इट्स नॉट लाइक कि अपना बचपना चला जाता है, but you are a more aware and a conscious child. I think that is the thing. तो इस तरह नहीं होता. अब आज जो है I usually do कि once a week मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कजन के पास चली जाऊँ या फिर फ्रेंड के पास चली जाऊँ, या फिर हम ऑनलाइन एक साथ आ जाएं somehow. अब जैसे आज कजन की घर थी तो अभी आए 5 मिनट में I ate my brownies and I'm like I'm going for an interview. We made brownies, we had some fun, you know, it was all a girls' day and we also watched films. तो बहुत मजा आता है. And I think हमें ये करना नहीं चाहिए कि नहीं जी मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ, मुझसे इतने नहीं होना चाहिए. कोई फख्र की बात नहीं होती. You should never ever miss out on anything that you have. All the opportunities. अब मैं सोचती हूँ यार मैं टीनेजर हो गई हूँ, अब मैं 12 साल की नहीं हूँ. अब अम्मा जो है ना डांटती तो अब तुम 13 साल की होगी, आगे बढ़ता जाता है. टाइम इज लिटरली फ्लाइंग. वो तो है. तो आपने ये जो माइंड प्रो ज्वाइन किया हुआ है लर्न स्कॉलर्स का, जहाँ पे सारे 50 से ऊपर हैं और आप अकेली बच्ची हो 12-13 साल की, तो हाउ यू फील इट अमंग देम? और उनको I couldn't hear you. Connection problems. मैंने कहा आपने जो माइंड प्रो जो है डायलॉग ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसमें सारे 50 प्लस के स्कॉलर्स प्रोफेसर्स हैं और आप एक इकलौती, अब तो खैर टीनेजर, आई वोंट से दैट यू आर किड एनीमोर, यू आर अ टीनेजर. सो हाउ यू फाइंड योरसेल्फ देयर? कैसा लगता है? वो बड़े आपको सुनते हैं जैसे समटाइम्स से कि अभी तुम बच्ची हो? Usually वैसे in international culture this is very much a Pakistani culture where the people say you are a kid. In international culture wherever you're talking your knowledge talks, not your age. So कैसा आपका उधर experience रहता है? It's really fun because you know अब मैं again the things के kids are always really observant. Being observant और ये नहीं होता sometimes. Yes, I am like इस word का क्या meaning होता है? What does that word mean? Because again, you know, I was 13-year-old stuck. I wouldn't say stuck, but you know, kind of like in the middle of a sea of like a lot of knowledge, and I need to understand that and I need to process that. It's really fun. और honestly, आप मुझे कहें कि हाँ तुम बच्ची हो, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा. लेकिन जब आप उसमें just या फिर but लगा देते हैं, that just and a but, you know, she's just a kid, but she is a kid. So I am not into the conversation anymore, honestly. But ऐसे कभी भी नहीं हुआ. सारे everybody is so loving. और मेरे साथ ये भी हुआ करता है कि everybody is like, you know what, I'm gonna name myself Raheen too. And और मेरा एक show था, everybody was like, I was Raheen original, and everybody was like Raheen 1, 2, 3. I think there were 4 Raheens, and everybody wanted to be like me, and it was so supportive. You know, we even crack jokes. It's really fun. I mean, and talking about this consciousness, talking about mindfulness, when you talk about such things, you know, sometimes your thoughts and your beliefs would become clearer. So I think that's really good for children our age.
That's great, that's great. ये तो बहुत अच्छी बात है राहीन. So Rahin, वैसे when you tell people जो आपको नहीं जानते कि you are a stand-up comedian, you do the comedy, what is the first reaction you get? इतनी छोटी हो, नो तुम इतनी छोटी हो, एंड कब सीखा, कब वो किया, अभी भी यू नो. एंड आई थिंक बाज़ देख के आपको स्टैंड अप कॉमेडियन का फकीराना अंदाज से पता चल जाता है ये ही वो बंदा होगा, महफिल में पता चल जाता है. बट हाँ, उनका थोड़ा अजीब सा ही अंदाज होता है, लेकिन I think the first reaction is like wow, and वो किसी भी तरह का wow हो सकता है ना, because a wow can be anything. Wow, like a dull one, or maybe a sarcastic one, or maybe like a true one. Wow, anything. Wow could be anything. I think probably that's a true, wow. That's true as well. नहीं तो कभी आजकल भी बेसिस में ईद मिलन पार्टीज होती हैं या तंबोला पार्टीज होती हैं, उधर कभी परफॉर्म करने का चांस मिला है या इट्स ऑल अबाउट आउटसाइड द बेस? बहुत अच्छा. मैं जब से आई हूँ ना तब से एक चांद रात पार्टी हुई थी, like literally 2 days after I came, लेकिन उसमें I did not get a chance to perform. लेकिन बेसिकली सबसे मजे की चीज ये कि 14th अगस्त का वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आपके बाबा भी तो सैटको रह चुके हैं, वन ऑफ द फर्स्ट सैटकोस ऑफ चकलाला. सो और मेरे अब्बा भी प्रेजेंट सैटको हैं, तो मजा ही मजा है, राइट. तो उस वक्त ये था कि हम लोग सोच रहे थे कि हम कोई ऑनलाइन वेबिनार, जो बच्चों ने ज्यादा मजा करना होता है तो बच्चों के लिए एक ऑनलाइन परफॉर्मिंग के लिए ना, और क्विज कंपटीशन, सिंगिंग के लिए, उसके लिए ना हम एक वेबिनार रख लें. अब आई वाज लाइक ओके, आई एम अप फॉर इट. और फिर टर्न्स आउट के आई वाज होस्टिंग इट एंड इट वाज रियली फन. यू नो, मॉर्निंग आई वेक अप एंड देयर आर सो मेनी किड्स. तो वो मैंने किया है. और अब सानू को पता है कि मैं होती हूँ. जब तक हमारे घर में इंटरनेट नहीं था तब ये हुआ करता था कि मैं ऑफिसर्स मेस के रिसेप्शन में बैठा करती थी. तो वो रिसेप्शन पे बैठ के सारों को पता होता था कि ये इसमें जो है ना रिसेप्शन पे बैठी, क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए था और मेरे मोबाइल में सिम नहीं है. तो मेरा था कि नहीं जी, मैं ना डेटा इस्तेमाल करी हूँ ना कुछ. मेरा बहुत काम होता था. सुबह 5 बजे तक मेरी मीटिंग्स हो चुकी है वहाँ पे. तो वो फिर बाबा मेरे जो है ना साथ ही उधर सोफे पे तकरीबन सोए भी होते हैं, लेकिन होता है उधर. अच्छा, यानी कि आपको वो बार पे चिट्टे काटने का चांस नहीं मिलता अगर अब्बा साथ होते हैं. मैं तो अब्बा की गैर मौजूदगी में सीधा अब्बा का पाक नंबर लिख के बड़ा सारा. I think that is that one thing that I missed out on. मैंने लिटरल कभी भी छुप के चिट नहीं काटी. या इस तरह मुझे ये हुआ है, मैंने एक दफा पहली दफा जब मैंने चिट काटी थी तो इमेजिन आई वाज इन द 5th grade. I was in the 5th grade and I was like, अब मुझे ये मौका मिल रहा है. और वो भी बाबा ने कहा था बेटा ये लिख कर आ, तो मैं वो लिख कर आ गई. और बीच तो फिर मैं हूँ. और अब जो साथ हुआ करती थी कुछ साथ टी बार हुआ करता था, तो उधर ही होता था कि हाँ बाबा कहते थे यू नो मिल्कशेक पी लेना, कॉफी पी लेना. तो वो जिस दिन वो कहते थे उस दिन मैं पी कर आती थी, वरना कभी भी तौबा कभी नहीं ऐसा. अच्छा, वैसे हम मानते हैं हम में से कभी भी कोई नहीं है कि हमने कभी किया है, लेकिन खैर है. अब्बू का जब महीने का बिल आता है तो अब्बू खुद ही ढूंढ लेते हैं. चले. हाँ, तो वैसे ये हुआ था कि बिल बहुत ज्यादा आ जाता है बाजू का, तो फिर उधर और उधर बेटा क्या लिखा था आपने. तो फिर मैं उस वक्त मासूम बनती है ना, बाबा आपने कहा था ना, तो फिर मैंने ले लिया. That's the point. तो वैसे अब जो कॉमेडी है वो आप किस तरह करती हो? आप लाइक सिचुएशंस पे कॉमेडी क्रिएट करती हो या अपने हेड में क्रिएट करती हो? क्या आपका थॉट प्रोसेस है कॉमेडी के बारे में? मेरी कॉमेडी ज्यादातर, अभी देखिए एक बच्चे का कितना एक्सपोजर होता है, अम्मा फूफियां खलाएं, इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं इतना होता. फैमिली मतलब स्टेइंग ट्रू टू दैट, ठीक है. सिचुएशनल उस पे, बिकॉज मुझे पॉलिटिक्स का पता नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती कौन सी पार्टी कौन सी है. हर दफा कोई नया ही नाम आ जाता है एयर वाई न्यूज पे, मुझे समझ ही नहीं आती, तो उस पर मैंने कभी नहीं बनाई. लेकिन सिचुएशनल उस तरह नहीं होती. कनेक्टिंग जो होता है यू नो टू, जो उसमें कनेक्ट करते हुए शायद कुछ छोटा मोटा हो जाता है, वरना नहीं उस तरह. मैंने मोटिवेशनल कॉमेडी भी की हुई है. A comedy with such a storyline that it is so motivating that the end, you know, it's like that motivational talk.
और फिर उसके अलावा जो है यूजुअली मैं अपनी फुफियों पे करती हूँ, अपनी अम्मा पे करती हूँ, क्योंकि देखिए अब मुझे अब जाहिर बात है कि पहले जब मैंने फुफियों पे किया था तो हर किसी को होता है यार तुम्हें मैं ही मिली थी करने पर, लेकिन हाँ फुफो कभी कभी थोड़ा सा हो जाती है ना, मतलब यू नो इमेजिन मी गोइंग टू पीटीवी एंड स्टिल क्रैकिंग अ जोक अबाउट माय फुफो, बट शी इज वेरी स्वीट, लाइक शी इज सो स्वीट, लेकिन अब मैं क्या करूं, मतलब जो हंसने वाले बंदा होता है ना वो कुछ कुछ होते हैं, मेरी फैमिली में जिस तरह खाला या चाचू पे सर कोई नहीं हंसता, मामू और फूफो पे ज्यादा लोग ज्यादा हंसते हैं, तो उस वजह से and it's very fun because you know the kind of like मुहावरात that I hear usually my comedy would go like because observations कि भाई जब हम किसी फौतगी पे जाते हैं या हम किसी शादी पे जाते हैं या हम वैसे गेट टुगेदर करते हैं तो क्या समा होता है उस वक्त, तो उस वक्त के जो नोट्स होते हैं वो फिर एंड पे काम आते हैं। और आई यूजुअली वुड मेक अ ट्रिप टू माय दादीज हाउस क्योंकि उनके मुहावरात माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, तो मेरे पहली दफा जिंदगी में सुना क्या था जाती कोड की थी शतीरिया ने जफे वो फल्ला मुझे समझ ही नहीं आई है क्या, but then my daddy tried explaining it to me but उसमें ही उन्होंने कोई 5 मुहावरे बोल दिए, so it's really fun। और फिर उसके बाद जब करते हैं परफॉर्म बिकॉज एक लाइव ऑडियंस का अपना मजा आता है, ये लाइव ऑडियंस है ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें we cannot really see the expressions, उधर we can see people were like boring था, the people were literally be like boring था। No, as a stand-up comedian, you'll actually have to move on to the other joke and try to make people laugh, but it's fun and it's also hard to make people laugh क्योंकि पाकिस्तानी कुछ भी कर लेते हैं, हंसते बड़े मुश्किल से, बहुत मुश्किल होता है। नहीं, that's true। तो आपको कौन हंसाता है? Who's your favorite comedian? Who's your inspiration? मैं बहुत ज्यादा चीजों पे हंसती हूँ, मतलब अब तो लिटरली पीपल दैट नो मी क्लोजली देयर लाइक अब मुझे समझ आता है तुम्हें क्यों स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का चांस दिया था, तुम हर चीज पे इतनी गंदी हंसी करती, तुम्हारे हंसी पे भी लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन माय इंस्पिरेशन, सो आई हैव a favorite stand-up comedian, two of them, so my like all-time favorites are Gabriel Iglesias, also known as Fluffy, and James Corden from The Late Late Show. I love them both. I watch them whenever I am free, which is not so much time, but बहुत मजा आता है। तो पढ़ाई को और इसको पैशन को कैसे बैलेंस करती हो आप? At times it is hard, but जिसने करना होता है कुछ भी कर लेता है, but ये होता है टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से करनी होती है कि असाइनमेंट सब तो खैर डिजिटल हो गया तो पूरा 6 घंटे नहीं वेस्ट करने पड़ते, बिल्कुल 3 घंटे में क्लास रन हो जाती है। सो वही मैं सोचती हूँ ऐसे हम क्यों उतना टाइम करते हैं, 6 घंटे से स्क्वीज करनी हो तो कर भी सकते हैं। खैर तो अभी तक तो यही है कि असाइनमेंट्स होती है वो सबमिट करा देते हैं और सारी चीजों के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि सिर्फ मेरे पास पैशन अपना और पढ़ाई तो नहीं है, फैमिली भी है, फिर फ्रेंड्स भी हैं, फिर अपनी वो जो फिल्मों का मैं एक सेगमेंट रखती हूँ बिकॉज आई लव वॉचिंग फिल्म्स, यू नो आई एम दैट फिल्म फ्रीक, सो वो भी मैं रखती हूँ, सो आई लव यानी कि आप फुल ऑलराउंडर हो। और इससे ज्यादा मैं आप सब ऑडियंस को बताऊं कि राहीन जो है इंग्लिश टीचिंग भी करती है ऑनलाइन, हफ्ते में 3 दिन, एंड शी इज टीचिंग इंग्लिश टू द पीपल हु कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली। सो राहीन ये टीचिंग का प्रोफेशन बीच में कहाँ से आ गया? स्टैंड अप कॉमेडियन टीचर बन जाए तो बच्चे तो बेचारे पता नहीं क्या सीखेंगे या हंस हंस के पागल हो जाएंगे। हाँ ये तो वैसे मेरे साथ हुआ, वो भी मैं आपको मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा तो आई बेसिकली स्टार्टेड आउट एज अ को-होस्ट एट कार्ला's शो और तब पहले तो आई वाज लाइक रियली अ फ्रीक्वेंट पर्सन गोइंग, बट अभी भी मैं जाती हूँ, इट्स लाइक सो फन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ different places and you know it's like that cultural exchange, like a lot of cultural exchange। अब दूसरा जॉब मैंने स्टार्ट किया है is that I volunteer to teach Japanese and Singaporean kids English, not just teach but to talk to them in English. We have certain topics to talk about and it's fun because you know they're always so curious and you know I keep cracking jokes and he's like, are you supposed to be a teacher? I mean, are you? No, they're kind of like confirming, are you supposed to be our teacher? But it's so fun, you know, what happened voluntarily every Sunday I go there and
so fun. That's great. So when you say Carla, is this Carla Richmond, right, from the USA? जी जी, एक ही हमारी कार्ला है, कार्ला रिचमंड. The famous one. Yeah, yeah, in a way you could say, yeah, the famous one. She's doing a lot of good work actually. Mashallah, she's doing really good work. That's true. तो आपकी जो यूएस बेस्ड डिजिटल इंक्यूबेटर है कोई आई थिंक आइडियाजिस्ट या क्या उसका कुछ नाम है, यू आर वर्किंग फॉर देम आल्सो, यू हैव बीन नॉमिनेटेड बाय देम, आई थिंक यू आर देयर यंगेस्ट नॉमिनी एंड यू आर वर्किंग फॉर 2 एनजीओस. ये ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमेडी एकदम इतना सीरियस सब्जेक्ट और इस तरफ कैसे आ गई, और स्पेशली ये जो आप थिएटर में भी थोड़ा बहुत काम कर रही हैं ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड वुमेन राइट्स एंड स्टफ, ये बड़ा मतलब both are contrasting stuff. Definitely being a stand-up comedian is a very different game, and this is a very serious stuff too. How you balance between Raheen the comedian and Raheen the social worker? I don't have to balance between that. It's Raheen there and it's Raheen here, because you know they're all okay. So see, now my mom, she has 2 kids, right? Me और फिर जो मुझसे 8 साल छोटा भाई है. You know, it's just like asking a mom कि जी आप किस तरह बैलेंस करती हैं अपने पेरेंटहुड या मदरहुड को. तो you know आ जाता है साथ आ जाता है. You know, it's both part of my part of me. So no, you just have to be a comic soul in order to be a stand-up comedian. और कुछ चीजों पे you have to work on your writing and your premises, but वो आ जाता है टाइम के साथ साथ everything would come. और साथ जो सोशल वर्किंग है उसके लिए आई फील इट्स समथिंग दैट वुड कम फ्रॉम योर हार्ट बोथ वेज. I mean, you cannot ever make it up. You could spot somebody who is making it up, right? You know, stop doing that. So लेकिन जो आइडिया जिसके साथ, so basically I was offered this show जिसका season 2 आ रहा है by the way, so please stay tuned. Season 2 is coming very very soon. तो talent show था, and everybody basically what they were doing is that they wanted to introduce, because you know for that cohort उन्होंने इतना टाइम लगाया बच्चों पर, उनको कॉन्फिडेंस दिया, बिजनेस सिखाया, बहुत कुछ उनके साथ काम किया है इसमें, और उनकी ट्रेनिंग पर कोई शक नहीं है because they have amazing modules. I mean, I've never experienced that, but I know the people, I know जो उनके trainees हैं, जो उनके cohorts में हैं, amazing people I would say. Now उनको they had to kind of like make an introduction to the real world, as in you know the business world and the Facebook marketing world. So that was my show, and I was so like, I was like 12 साल की होगी मैं ये कर रही हूँ, फखर हो रहा है मुझे अपने आप पर. तो बहुत मजा आया उसमें. उसमें हम लोगों ने 20 स्टूडेंट्स का किया, आप दोबारा 20 का कर रहे हैं, would keep going on as the other cohorts come. 2 NGOs के साथ basically was because मेरा एक startup है basically जो is a substitute for polythene bags. Now I cannot reveal too much because it was supposed to be launched like way before, but अब कोरोना जी आ गए हैं, तो कोरोना अंकल जब जाएंगे तो तब ही वो सब कुछ होगा. तो उनके साथ भी काम करने में बहुत मजा आता है. बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसमें I am part of that, and मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ. लेकिन अब तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा चीजें रुक गई हैं. तो और स्टैंड अप यूज पे जो काम है वो आई बेसिकली स्टार्टेड एज थिएटर, बिकॉज मेरे जो स्टैंड अप कॉमेडी में जितने भी फ्रेंड्स थे एंड कलीग्स थे, दे वर ऑल लाइक थिएटर एक्टर्स एज वेल. और मजे की बात बताऊं, आई मीन नो ऑफेंस टू अदर इंजीनियर्स आउट देयर, बट मेरे साथ मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड ऑल ऑफ द कॉमेडियंस वो सारे इंजीनियर्स हैं. Imagine that. Well. No, but I'm not a comedian. But I'm not a comedian. नहीं, देखिए, the thing is that if you wanted to do comedy, तो end of the day आपने comedy की है तो आप ना engineering करते. But इसलिए I like मैंने पहली चीज stand up comedy कर ली. मैंने कहा मैं ऐसे ही इतनी जो है ना डिग्री शिग्री करके उसके बाद मैं stand up comedy में हूँ, इतनी एफर्ट मैं क्यों अपनी जाया करूँ, कहा ना बहुत लेजी होगी मैं, तो इस वजह से. और बेसिकली इसलिए मैंने स्टार्टअप किया था. I was offered a role, it was an amazing role.
और बहुत मजा आता है एक्टिंग में. एक्टिंग इज लाइक सो फन. आई मीन वी हैव फन ऑन सेट. और फिर 420 में मैंने एक पपेट शो भी किया और एक थिएटर प्ले भी किया. इट्स लाइक फन, लाइक ओवर द टॉप. दैट्स ग्रेट. तो रहीन, वैसे मैं आपको बताऊं, जो हम इंजीनियर्स होते हैं ना, बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं. तो इसकी वजह यह है कि आपको सारे सिंगर्स, इस तरह के टैलेंटेड लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकल के मिलते हैं. इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना. वैसे तो वैसे वही कहते हैं. तो वैसे आप हैकलर्स वगैरह से डील कैसे करते हो? क्या आप हैकलर्स वगैरह से डील कैसे करती हो? क्योंकि हैकलर्स जो है ना, कॉमेडियन के लिए सबसे मुश्किल काम होते हैं किसी भी जगह, और स्पेशली एज आपने पहले भी कहा, पाकिस्तानियों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है. तो दे लव टू से कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, मजा नहीं आया. सो हाउ यू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस जब पीपल स्टार्ट हूटिंग, शाउटिंग और समथिंग, और इट हैड नेवर हैपेंड विद यू टिल नाउ? पहली बात ना, मेरा मसला है कि मुझे ना अब कॉमेडी ये होता है कि कॉमेडियन हैज टू बी लाइक वेरी अटेंटिव ऑल द टाइम, बिकॉज़ somebody could just shout something from the audience and you could either make a joke out of it or just say, did you have to say that? I do that. इस वजह से अब मैं क्या करती हूँ बेसिकली कि जो हूटिंग और शाउटिंग होती है, मुझे समझ ही नहीं आता. As in कि they would say something और मैं कहूँगी क्या बोला इस बंदे ने, क्या बोला, मुझे कोई बंदा बताएगा. ठीक है, मेरी ये हालात है. लेकिन अगर का मजा नहीं आया तो मैं कहती हूँ भाईजान आप आ जाएं, आप मुझे हंसा दें. मुझे पता आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता मैं बहुत गंदी हूँ, तो आप आ जाएं. ठीक है, वो बंदा मुझे हंसा देगा नहीं हंसाएगा वो अलग बात है. लेकिन मैं फिर एक ही बात कहती हूँ, मैं अपनी हर कॉमेडीज में एक ही बात कहती हूँ कि जी आप यहाँ पे क्यों आए? गोंगलू लेने के लिए आए? गोंगलू लेने के लिए नहीं आए ना, आप यहाँ पे पैसे देके 1000 का टिकट देके आए हैं. मतलब 1000 का टिकट, मतलब मुझे तो शुक्र है टिकट नहीं देना पड़ता. मैं कहती हूँ भाई मैं कॉमेडियन हूँ, मैंने कॉमेडी नहीं करी, मैंने टिकट नहीं देना, आखिर पंजाबी की बेटी हूँ. तो उनका ये होता है कि जी मैं आप 1000 रुपए टिकट दे हंसने के लिए आए हैं आप, तो खुदा के लिए आप हंस भी ले. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, जो ज्यादा पैसे देकर आते हैं ना, उनको वैसे ही हंसियां उनको आ रही होती हैं. मतलब जोक ना भी करो तब भी वो हंस रहे. ये बात जरूर है. तो ये पैसों की गेम है इन द एंड. जिसने ज्यादा पैसे लगाए खुद ही हंस पड़ता है. थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि आप खुद बताएं 500 का टिकट देके इतनी हंसी नहीं आती. 1000 का जब हो ना या 1500 का तो मजा आ जाता उधर. अच्छा, तो बाय द वे कभी ऐसा हुआ स्टेज पे आप फंस गई हो, मतलब कि अब आपको समझ नहीं आ रही हो मैंने क्या करना है, मैं क्या जोक सुनाऊं, जिस तरह बंदा डेड हो जाता है कई दफा, कैसे सिचुएशंस में निकलते? खैर एक दफा ज्यादा मेन हुआ था, वो ये होता था कि उस दिन मेरा दिन बहुत जो है ना बहुत बिजी था. क्योंकि मेरा ये था कि मजे की बात, उससे पहले वाले दिन मेरी फूफो की शादी थी. अगले दिन मेरी पिच थी एट द NIC फॉर द कोहर्ट 6. पिच लेके आई, सोई और बस मतलब आधे घंटे में शो था. और जल्दी जल्दी जो हुआ मैंने उस वक्त किया, और उधर जाके आई वाज लाइक रियली स्टक. मतलब बहुत ज्यादा हालात खराब थे, लेकिन कुछ नहीं होता. एक ये होता है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट व्हाट यू हैव टू से. लेकिन वो एक ही दफा हुआ था, मतलब वन टाइम थिंग थी. ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अच्छा यार इस बंदे पे हंसे हैं, मतलब समथिंग गोइंग ऑन अप इन योर हेड, दैट डज हैपन. दैट्स ट्रू. तो आपका बेस्ट क्राउड आज तक लाइफ का कौन सा है जिसको आपने एंजॉय किया, जहां पे आपने परफॉर्म करना, आपने कहा दिस इज द बेस्ट वन? बेस्ट शो ऑफ माय लाइफ वाज एट ला, उसका क्या नाम था, इतनी जगह का नाम ही क्या था मैं भूल गई. तब कोई नई बात तो नहीं है कि मैं भूल गई. It was actually a show somewhere in F6. It was so fun. I mean, I think it was the most funnest show of my life. That's great. Because उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था, क्योंकि अब बिकॉज मैं सिर्फ होम्योपैथिक शोज में करती हूँ जो थोड़े से PG के अंदर रह के शोज होते हैं, उसमें थोड़ा सा उसके हिसाब से हल्का सा हो गया था. लेकिन कोई नहीं, अब कॉन्शियस हो गई हूँ इसके बाद में. नहीं, बहुत मजा आया था उस पर. It was like really fun. I think it was more fun because उसमें हम लोगों ने क्या किया था, that we had a box and we had all those purchase of the names inside. तो हमें अपना लाइनअप नहीं पता था. And I was like, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का था कि या अल्लाह मैं सबसे मतलब as soon as possible मैं आ जाऊं, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि जब तक आप लेट होते हैं तो आप पूरा शो नहीं एंजॉय करते. You're like
वो एक होता है, यू गोइंग अप टू स्टेज एंड ऑल दीस थिंग्स. अब मैं ये कहूँगी नहीं जी मैं तो नर्वस होती नहीं हूँ, लेकिन होना होता है यार, हो जाता है बंदा. या तो ये होता है दैट यू आर अ लायर, और या तो आपके साथ कोई मसला होता है, यू से यू आर नॉट नर्वस एट ऑल, because everybody is a bit nervous at times. Everybody has those, I'm not good, all those panic attacks and stuff, minor ones. So हाँ वो था, लेकिन बहुत मजा आया उसने, मतलब परफॉर्मेंस सब ने बहुत एंजॉय की, मजा ही आ गया था उस परफॉर्मेंस में. और आई थिंक उसका सबसे अच्छा पार्ट ये था कि उसके बाद, बिकॉज अब्बा को परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी आती है, यूजुअली वी वुड डू इज दैट वी हैव डिनर आफ्टर दैट, एंड वी हैड लाइक अ वेरी गुड डिनर आफ्टर दैट. तो उसके बाद लाइक वी हैड दिस वेरी अमेजिंग स्टे. So yeah, we had fun. Right. We had fun that day. That's great. That's great. What's your favorite joke, by the way? So my favorite joke is, अच्छा मैं आपसे बताती हूँ ना अपने कॉमेडी वाले अंदाज में. तो मेरी अम्मा को उनकी शादी से पहले रोला कहा जाता था. जब मेरे अब्बा रिश्ता लेके गए तो नानापू दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, और नानापू ने दिल में कहा अल्लाह ताला का शुक्र सादा रोला तो किया. उनने फौरन बाबा को कहा तेरा रोला मेरा रोला माँ दा पड़ोला ते नाल रोला ले जा पुत्र ले जा. मेरे वहां बहुत वाइज आती है, इसे पंजाबी में बगैरत कहते हैं. उनने फौरन अपना फोकस रोला से हटा के रोला पे करके फौरन हाँ कर दी. My Baba still drives us to Sorola. That's a good one. Yeah. I actually received quite a lot of backlash for saying wise, जिसे पंजाबी में बगैरत कहते हैं, to my dad. Now, अब इसके पीछे, अच्छा अब I never ever, and I'm going to take some time here, I've never gotten the chance to explain this. Now, the thing is, कि हम लोग बाज़-औक़ात, बिकॉज़ मेरे पंजाबी में होता है, पंजाबी का मैंने किसी चीज में टारगेट नहीं किया, लेकिन अब देखें हम ये कहते हैं कि बस जो दिल में आ रहा था उस वक्त हम कर लेते हैं, गुस्से में. The wise people, they think before they do something, right? और जो दूसरा साथ वाला होता है, यार आर यू बेगैरत जो तुम ये कर नहीं रहे, है ना, क्या तुम्हें अभी गैरत नहीं आ रही, तुम अपनी गैरत को जगाओ. ये अब हम लोगों ने सारों ने खुद इस तरह देखा हुआ होते हुए, राइट. मैंने उस सेंस में कहा था, people like you're saying that to your dad, you're saying that to your dad. और मेरे अब्बा और मेरे अम्मा से इस शो के बाद they were a bit shook and they were like, yeah, we are your parents. We are your parents. And I was like, Anna, you are my parents. I think you're proud of that. I think you are. Yeah. That's a good one. So वैसे अभी सोसाइटी पर्सपेक्टिव क्या है, अडॉप्टेबिलिटी कैसी है प्रोफेशन की एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन पाकिस्तान में? इट्स अ वेरी न्यू वन. जैसे हम छोटे होते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, मोइन अख्तर होते थे, बट दैट वाज नॉट प्योरली अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही वाज ऑफ अ वेरी डिफरेंट लीग. तो अभी पर्सपेक्टिव क्या है इस तरह की नई परफॉर्मेंसेस का या इस तरह के टैलेंट्स का? So the thing is that the people that are around me are so supportive of this. I mean, as supportive as my dada, he is my he's the best man to go to when you're performing. He's like, mashallah, mashallah, fakhar hai meri teeth hai. And he's like, pure Punjabi, and he's like, although he does not understand when I start like speaking English, and he speaks Punjabi, and he's like, fakhar hai, fakhar. So yeah, my dado, my dadi, my uncles and my aunts, they all are really supportive. And as for the audience and for the people that watch it on the internet, now they can I think my comedy is also sometimes unique because of the fact that मैं इसमें देखिए, I feel like कि आजकल कॉमेडी ज्यादातर ये भी होती है कि उसमें आप गंदी चीजें डाल देते हो, उसको थोड़ा सा PG-18 कर देते हो और उसके बाद चीज चल जाती है. ऐसे नहीं होता. अगर आपने फनी रहना है तो आप विद इन द लिमिट्स ऑफ 7+ में भी हो सकता है. मेरी कॉमेडी आई कंसिडर इट 7+, या फिर ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कंजर्वेटिव उसमें हो तो चलो 13+ होता है. उससे ज्यादा तो नहीं होगी मेरी कॉमेडी. सो आई फील लाइक दैट इज समथिंग. बट द यंग ऑडियंस, the millennials, they are so supportive. I mean, एक तो उनके अपने स्लैंग होता है, मैं भी थोड़ी सी मेरा भी स्लैंग जो है वो सब कुछ थोड़ा आउटडेटेड है, तो आई हैव लाइक
इसका क्या मतलब होता है? तो हाँ, लेकिन बहुत मजा आता है. Even I've had like people who are like over 60 on my shows and they're just so fun. I mean, they're laughing and they're saying stuff and you know, बहुत मजा आता है. And you know, being involved with that audience is so fun. That's great. Raheen, मेरी audience भी बार-बार मुझे request कर रही है. They want to hear something from you more, and they really like your previous one. So I'm giving a big. They really want to hear something from you. I'm going to give you a big screen. Over to you. Okay. ठीक है. तो मेरे अम्मा और अब्बा दोनों की लव मैरिज और इसके बाद खानदान के सारे नौजवानों को लव और मैरिज दोनों से नफरत होती थी. मेरे बाबा ना बैठे सुन रहे थे, नहीं आते शौक चढ़ ना जाए कहीं, तू भी दिल से कर ना जाए कहीं. मामा आ गए. मामा ने कहा केड़ी बेबे तेरी चढ़दी ते लैंदी ते चढ़दी. मैं बताऊं, मामा के ना इन्हीं जुमलों इन्हीं बातों की वजह से ना पापा के फ्रेंड्स ने भी घर आना छोड़ दिया. तो वैसे कोई बात करने वाली होती है, पापा के फ्रेंड्स ने भी आना छोड़ दिया. पापा के ना एक फ्रेंड है फराज अंकल, वो आए हुए थे ना हमारे घर. बड़ा मजा आया. जब वो गए ना तो उन्होंने पापा को टेक्स्ट मैसेज किया. वो एक शेर था, इन कंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन कंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बच्चे तेरे जवान है कुछ तो ख्याल कर. हाँ, मैं एक बात बताती चलूं कि जब मेरी अम्मा सरगोशी करते हैं तो पड़ोसी सुनते हैं, जब वो नॉर्मल बोलती हैं तो पूरा मोहल्ला सुनता है, लेकिन जब वो गुस्से में बोलती हैं तो एज लेवल ग्रेवयार्ड मेरी नानी की आवाज आती है, जे कीजे लीजे लभी गहती है तो जीवन दे. साथ मेरे कब्र से मेरी नाना बू की आवाज आती है, तू जीवन देता सी. That's all from my side. Thanks, Raheen. Thanks. That's a good one. You want to add one more before we sign off? Yes, I think yeah. So, you know, me and my best friend, we both were doing this amazingly viral ancestry test. So उसमें यह होता है कि on a very special piece of paper आप थोड़ा सा अपना थूकी देते हो और फिर वो लैब टेस्ट के लिए जाता है and then they determine कि आपके ancestors क्या है. ठीक है, ancestry जो lineage होते हैं वो क्या है. Now me and my best friend, because you know we're these like very social media queens, so उस वजह से we did that test, like we were live and it was so fun, like we were doing that. और फिर उसके बाद our results came in. उसका तो खैर उसका तो Mongo था, but mine spelled MERASI. It's spelled Marasi. मैंने उधर ही एंड की ब्रॉडकास्ट. उधर मैं अपने घर गई, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं रो भी रही थी क्योंकि मेरे बिल्कुल बेइज्जती हो गई थी सोशल मीडिया पे. और मेरी दोस्त बेचारी वो बर्गर बच्ची, उसे तो समझ भी नहीं आई वो था क्या, लेकिन मुझे बड़ी समझ आ गई थी. मरासी लिखा हुआ था उसके ऊपर. मैं गई, मैं बाबा के पास बैठी, मैंने कहा बाबा explain this piece of paper that says Marasi on it to me. बाबा मेरे बड़े काम बन गए. बैठे, उनका बेटा पुराने वक्तों में ना स्टैंड अप कॉमेडियन को मिरासी कहा जाता है. ये तो कुछ क्षण गुजरे हुए सालों में हमें थोड़ी शोहरत नसीब हुई है तो हमें स्टैंड अप कॉमेडियन कहा जाता है. क्या लोग घर में नहीं घुसने देते थे, अब आ के रिक्वेस्ट पे जो है जोक सुनते हैं. बेटा हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, आपको फख्र करना चाहिए कि अब we are called stand-up comedians, not Marasi. Thank you so much. Thanks a lot, Raheen. Thanks for your time. It was one of the amazing interviews I ever have done. क्योंकि बड़ा मजा आता है कि जब हम अपने पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं, और especially Raheen, multi-talented people like you, we really need them more. You're doing the great work. Please carry on. And inshallah, whenever I will be back in Pakistan, inshallah, we'll try to meet up as well. Thanks a lot, Raheen. Thanks a lot for your time.
And all the members, thank you सुनने का. रहीन, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर रहीन जैसे और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग लेके आते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे. बट मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं. Honestly speaking, Raheen is one of the best, and I really enjoyed being with her in this interview. I want to say thanks to all of you for hearing us and bearing with us for this. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Assalamu alaikum and good night to all of you.